Good morning, everyone. And first of all, welcome. I think it is your first class. Second class? Okay. Okay, fine. Myself, Dr. Anubhuti Sharma. I'm working as senior resident at psychiatry department. So we would be taking class, or we would be discussing, better say, on how to manage the stress and how to do the time management. Okay? Fine? Let's go. So I think we all suffer from some kind of stress. Okay? It would be a bidirectional class. You know, there are two kinds of communication you would be reading in your PSM. One is unidirectional and second one is bidirectional. That is called Socratic. Okay? So we would be doing the bidirectional one. Okay? So I think you have also heard about stress. है ना? So first of all, we always say that कि बहुत stress हो रहा है, चीजें संभल नहीं रही है, परेशान हूँ, stressed हूँ, depressed हूँ, ठीक है? So first of all, we have to understand what the stress is. Okay? So what is a stress? Physics में पढ़ा होगा ना? Physics में क्या था stress? Okay, so here it is not actually the force. Here stress is about your mind and body's response or reaction to a real or imaginary threat, event or change. Okay? The threat, event or change are commonly called stressor. जो चीज आपको स्ट्रेस दे रही है दैट इज स्ट्रेसर. ठीक है? और आपकी बॉडी कुछ जो भी फियर है उसको जो रिएक्ट कर रही है दैट इज द स्ट्रेस. ओके? Stresses can be internal as well as external. Internal may be thoughts, beliefs or attitudes. External, any loss, tragedy or change in your life. है ना? And it is important to remember that stress is a natural part of life. ठीक है? हमें हमेशा स्ट्रेस लाइफ में रहेगा किसी ना किसी तरह का. ठीक है? तो हमें स्ट्रेस से भागना नहीं है. have to face them. ठीक है? Experience stress can be good, but it can also a negative effect on one's well-being. Some stress is good, that is eustress, and it is helpful and assists the drive towards achievement and success. Negative stress, that is distress, affects life in an adverse manner and is a common cause of ill health in our society. What makes the stress a positive or negative factor lies with how effectively the person experiences the stress is able to managing it. Okay, so have you ever heard about eustress? सुना है? क्या होता है eustress? क्या होता है बताओ? दैट इज गुड. नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट है या फिर कोई चैप्टर है, हम लोग नॉर्मल डेज में उसको 10-10, 15-15 दिन तक लेके बैठे रहते हैं. मेरे साथ तो ऐसा होता है. बट मैन, जब एग्जाम की बात आती है, व्हेन इट इज अबाउट द एग्जाम, हम उस चीज को 15 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं ना. तो व्हाट इज इट? इट इज यू स्ट्रेस. ठीक है? और स्ट्रेस तो वही कि इट इज लाइफ ऑफ पार्ट, बट आप कितनी इफेक्टिवली उसे मैनेज करते हैं वो उसको यू स्ट्रेस या डिस्ट्रेस बनाएगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हुए, चैलेंज लेते हुए आप उसको फेस करते हैं, देन इट इज यू स्ट्रेस. अदरवाइज अगर आप उसको रोते हुए, बेचारा बनते हुए फेस करते हैं, इट वुड बी डिस्ट्रेस. ओके? So performance is different type of stress. If we talk about eustress or positive stress occurs when level of stress is high enough to motivate you to move into action to getting things accomplished. And distress or negative stress occur when the level of stress is too high and your body and mind begin to respond negatively to the stressor. ठीक है? एक तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको ले रहे हो. एंड द सेकंड थिंग इज लाइक दैट, अगर फॉर एग्जांपल अभी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके में. अगर आप सब्जेक्ट्स को रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे और जब एग्जाम टाइम आएगा, ऑफ कोर्स आपके ऊपर वो यूज स्ट्रेस होगा. ठीक है? बिकॉज आपके पास टाइम है, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास एफिकेसी है. ठीक है? तो आप उस चीज को मैनेज कर लोगे. बट अचानक से आपको बोल दिया जाए कि एकदम नई चीज आपको पढ़नी है और आपको एग्जाम देना है, तो ऑफ कोर्स इट वुड बी डिस्ट्रेस, चाहे आप कितने भी एफिशिएंट हो. ठीक है? सो आपकी प्लानिंग ये चीज डिसाइड करती है, आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा वेदर कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस आने वाले हैं वो आपको मोटिवेट करेंगे या फिर एग्जैक्टली. ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ग्राफ समझ में आता है, फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है. ठीक है? जैसे जैसे लेवल ऑफ स्ट्रेस मॉडरेट है, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है, देन इट इज यू स्ट्रेस. बट लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस कम होती जाती है. ठीक है? तो आपका स्ट्रेस भी है ना एक लेवल तक होना चाहिए, देन दैट इज स्ट्रेस कर्व. ठीक है? इनिशियली इनएक्टिव है, लेट बैक है, फटीग आता है, एग्जॉस्शन आता है, फिर फाइनली बर्न आउट हो जाता है.
ठीक है, समझना पड़ेगा स्ट्रेस अफेक्ट कैसे करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, वी ऑलवेज यूज टू टॉक ना कि स्ट्रेस में रहते हैं तो बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं ना, हाउ इट इज अफेक्टिंग आवर बॉडी। ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से होता है क्या हमारी बॉडी में जो सिम्टम्स हो सकते हैं, देयर में बी बर्नआउट, एग्जॉशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, पेप्टिक अल्सर and hypertension and heart attacks and substance abuse and other drugs with all social and professional consequences. Okay, so on when we talk about the body organs and on brain, it causes difficulty in concentrating, anxiety, depression, irritability and mood and mind fog. And cardiovascular, it may lead to high cholesterol, high blood pressure and increased risk of a heart attack. Skin, hair loss, dull brittle, hair brittle and dry skin, acne and delayed tissue repair. And in gut, it causes delay in nutrient absorption, diarrhea, constipation, indigestion and bloating and pain and discomfort. And when you talk about immune system, it always reduces the immunity. Okay, and on reproductive system, it decrease hormone production, decrease in libido and increase in PMS symptoms. सब समझ आ गया? अभी आगे समझ आएगा कि स्ट्रेस ये सब करा तो रहा है, मतलब आई एम टेलिंग यू कि ये चीजें हो रही हैं, बट ये चीज हो क्यों रही है ना। चलो, when you talk about the medical student and stress, as usual इतना कोई stress होता नहीं है, but फिर भी medical undergraduate students are adolescents. Okay, adolescents ही होना सारे। Since adolescence is period of significant changes, you are getting through from various kind of physical, emotional and social and academic changes, है ना। So organizational होता है, deadlines होते हैं, कुछ rules होते हैं, regulations होते हैं, examinations होते हैं आपके, ठीक है। Hence they are more prone to stress. Every human on earth experiences stress. For medical students and physicians, stress is a common denominator in life. Challenges faced in college by medical students क्या क्या हो सकता है? Expectations, the best years of your life. ठीक है, सच में होते हैं। Any change in stressful, greater academic demands, less time, more work, no one to seek guidance from, and being on your own in a new environment. अभी नए environment में आए हो, कुछ लोगों को तो adjust होने में time लगेगा अगर वो घर से सीधे निकल के आए हैं। नॉर्मली ये भी होता है कि अब नए नए डॉक्टर बनते हो तो घर वालों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यू विल डू समथिंग गुड, और ऐसा भी होता है कि एक बार आप फर्स्ट आ जाते हो या फिर आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाती है, आपके ऊपर एक नया स्ट्रेस आ जाता है कि नहीं, अब अगली बार भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है ना। इट हैपन्स विद यू ना। लेस टाइम एंड मोर वर्क, एक्चुअली अभी से बता रही हूँ, अगर चीज़ों को शुरू से मैनेज करके रखोगे, ठीक है, रोज जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी डिसेक्शन किया है उसको रोज जाके पढ़ोगे, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा सब कुछ, अदरवाइज सब हाथ से निकल जाएगा। चेंजिंग रिलेशन विद फैमिली, सब्सटेंस अब्यूज, यहाँ पे आके कुछ लोग कूल बनने के लिए कुछ नए नए सब्सटेंस ट्राई कर सकते हैं। इट हैपेंस यू नो मेडिकल कॉलेजेस में, व्हेन आई एम फ्रॉम 2011 बैच, कुछ रेयर लोग ही सब्सटेंस अब्यूज करा करते थे, बट नाउ इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वी आर ऑल्सो हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने यूज टू डू माई पीजी, लोग जब आते थे, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस यू, उनकी पूरी लाइफ हैल हो जाती थी कैनाबिस लेके। अल्कोहल का तो एक बार छूट जाएगा, ठीक है, बट व्हेन दे आर टेकिंग द स्मैक कैनाबिस, उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, बट उनकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है, परमानेंट चेंजेस आते हैं उससे। तो आई होप आप इस चीज़ों का ध्यान रखना। इश्यूज विद रूममेट्स, ऑफ कोर्स सबके साथ होते हैं। सेक्सुअल आइडेंटिटी, वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, फूड एंड स्लीप, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स हैव मीन एंजाइटी स्कोर 1 स्टैंडर्ड अबव दोज ऑफ नॉन पेशेंट्स, दे आल्सो सफर फ्रॉम डिप्रेशन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ओके, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेस? आपको पता है कैसे लगेगा आप पे स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। यू मे फील पुअर एपेटाइट और ओवर ईटिंग, डिपेंड करता है, कुछ लोग खाना बंद कर देते हैं, कुछ ज्यादा खाने लगता है। फीलिंग टायर्ड एंड फटीग, various acts and pain like headache, body ache, muscular pain, abdominal pain and nausea, sleep disturbances and falling sick too often, बार बार बीमार होना, है ना। और what can be the mental symptoms? That feeling low, nervousness and anxiety, anger outburst, being easily upset, poor self confidence, low self esteem, lack of concentration, poor academic performance. And these behavioral appetite changes, too much or too little, eating disorder like anorexia, bulimia, नाम सुने, आगे सुन लोगे, ठीक है। इंक्रीज इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स, इंक्रीज स्मोकिंग, रेस्टलेसनेस, फिजिटिंग, नेल बाइटिंग एंड हाइपोकॉन्ड्रिया। जरूरी नहीं सबको हो, किसी को कुछ हो सकता है किसी को कुछ भी ना हो, है ना। इमोशनल आर बाउट्स ऑफ डिप्रेशन, इम्पेशंस, फिट्स ऑफ रेज, fearfulness, deterioration of personal hygiene and appearance। किसी को कुछ समझ नहीं आया ना,
तो पूछ लेना। ओके, एवरीवन इज डिफरेंट विद यूनिक परसेप्शन। अभी आ जाएगा है ना आगे निकाल के, ठीक है। तो एक ही कोई सिंगल लेवल नहीं होता है स्ट्रेस का आपकी लाइफ में, है ना। लाइफ के साथ आपके स्ट्रेस बदलते जाते हैं, कभी सिंगल होते हैं, कभी मल्टीपल होते हैं। किसी के लिए कोई स्ट्रेस ज्यादा बड़ा होता है, किसी के लिए कुछ मैटर भी नहीं करता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ स्ट्रेस वी एक्सपीरियंस इज सेल्फ जनरेटेड, हाउ वी परसीव लाइफ, ठीक है। हमारे एक थेरेपी होती है, उसमें यही सिखाया जाता है कि एक्चुअल में सिचुएशन इफेक्ट नहीं करती है आपकी लाइफ को, इफेक्ट ये करता है कि आप उनको कैसे परसीव कर रहे हैं, है। सेम प्रॉब्लम अगर आप उसको चैलेंज की तरह लेते हो, देन इट्स गुड फॉर यू, और किसी चीज को आप बर्डन के लिए लेते हो, देन इट्स ऑफ कोर्स बैड फॉर यू, ठीक है। Whether an event makes us feel threatened or stimulated, encouraged or discouraged, happy or sad, depends to a larger extent on how we perceive ourselves. Self-generated stress is something of a paradox because so many people think of external causes when they are upset. Recognizing that we create most of our own upset is an important first step towards coping with that. ठीक है, समझो इस बात। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, ऑफ कोर्स आजकल मेडिकल में घुसना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, पहले बहुत कम सीट्स होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा है। और आप कंपेयर कर रहे हो अपने साथ वालों से जो कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एंड यू विल बी कि मेरे पे बहुत स्ट्रेस है, मेरे पे बहुत स्ट्रेस है, ही इज़ वेरी हैप्पी। यार तो ये तुम्हारा खुद का सेल्फ जनरेटेड स्ट्रेस है, तुमने चूज किया है उसको, है ना। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बिग अपॉर्चुनिटी देन सीक आउट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको अपने आप को स्ट्रेस देने की या फिर अपने आप को विक्टिम समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव चूजन दैट पाथ, ओके। अब हमें जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम पढ़ना पड़ेगा कि होता क्या है जब भी कोई स्ट्रेस हमारी लाइफ में आता है, तब हम कैसे उसको फेस करते हैं। जब हम ऑफ कोर्स एनिमल से डिराइव है, वी आर ऑल्सो एनिमल, ठीक है। तो जब हम बात कर लें अर्ली एरा की, ह्यूमंस बने थे या नहीं बने थे, तो स्ट्रेस क्या होता था, दो ही तरह के स्ट्रेस होते थे। कोई हमें मारने ही आता था, शिकारियों का टाइम था, प्रे एंड प्रेडेटर, है ना। कोई हमें मारना आता था तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता था, उस टाइम पढ़ाई का, फैमिली का, ये फाइनेंशियल, ये सब स्ट्रेसेस नहीं होते थे, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप, या तो भाग सकते हो या लड़ सकते हो, ठीक है। दो तरह के स्ट्रेसर होते हैं। बट अब हम क्या इवॉल्व हो गए हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम ना तो भाग सकते हैं ना हम लड़ सकते हैं, समझ रहे हो। तो फिर होता क्या है, बट हमारी बॉडी तो वही है, अभी इतना कुछ चेंजेस आए नहीं है इवोल्यूशन में, है ना, पढ़ा होगा बायोलॉजी में। तब क्या होता है कि जैसे ही कुछ स्ट्रेस आता है तो दो तरह के रिस्पॉन्स वही है अभी भी, फाइट और फ्लाइट। तो हमारी बॉडी क्या उसको इमीडिएट एक्शन के लिए तैयार करती है। फिर क्या होता है, अगर वो जो स्ट्रेसर है वो हमारी लाइफ में परसिस्ट कर जाता है, देन बॉडी प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, सिक्रेटिंग हार्मोन्स टू इंक्रीज ब्लड शुगर। This phase is common and not necessarily harmful, but may include periods of relaxation and rest to counterbalance the stress response. Fatigue, concentration lapse, irritability, lethargy results as a stress turns negative. ठीक है, स्ट्रेस हमारी लाइफ में आ गया, ठीक है। एक तो होता है परसिस्टेंट, ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में ऐसा कुछ पार्ट नहीं है कि कोई भी स्ट्रेस बहुत कंटिन्यू रहने वाला है ना। आएंगे स्ट्रेस, बीच में आएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, हमारी बॉडी उसको बैलेंस करती रहेगी, ठीक है। एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, नाम सुना है ना। तो ये सारी जो हार्मोन्स होते हैं ना, अब नेफ्रिन, नॉर्पेनेफ्रिन, ये एड्रेनल वाला ये जो होता है ना, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, फिर पिट्यूटरी जाके एड्रेनल ग्लैंड को करती है। तो ये वाले जो हार्मोन्स होते हैं ये हमें इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं। बट नेगेटिव इफेक्ट इसलिए नहीं आता है बिकॉज बीच बीच में हम लोग रिलैक्स भी करते हैं, टाइम आउट भी करते हैं ना, काउंटर बैलेंस करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है, दैट सब ठीक जाता है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेसर आपकी लाइफ में कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है, विदाउट एनी रिलैक्सेशन, और लगातार वही आप कैसे उसको लेने लगते हो, आप उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हो, तो फाइनली ये आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगता है। अब फिर क्या होगा, सफर सेंटर एग्जॉशन फेज में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल रिसोर्सेज सफर करने लग जाएंगे आपके, एंड द बॉडी एक्सपीरियंस एड्रेनल एग्जॉशन लीडिंग टू डिक्रीज स्ट्रेस टॉलरेंस, प्रोग्रेसिव मेंटल एंड फिजिकल ऑब्सेशन, इलनेस एंड कोलैप्स, ठीक है। तो मेंटल स्ट्रेसर आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट करते हैं, कॉर्टिसोल का अगर आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या आपकी बॉडी पे करता है, आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, ब्लड शुगर को बढ़ाता है, आपकी जो स्किन होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है स्किन से, तो उससे क्या होता है कि आपके बाल झड़ने लगते हैं,
आपकी स्किन पतली पड़ जाती है, आप इम्यूनिटी कम हो जाती है, ठीक है, और इम्यूनिटी कम होगी तो 1000 तरह की बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से मेंटल स्ट्रेसर आपकी फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब लाइफ को मैनेज कैसे करना है ना, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूड स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। फाइनेंशियल तो भी आपको करने की जरूरत नहीं है ना। पर्सनल प्लानिंग ऑफ ईच ऑफ दीज इश्यूज विल इंक्रीज द सेरेनिटी एंड रिड्यूस द स्ट्रेसर विद इन अ बिजी लाइफ विद इवेंचुअली लीड टू अ प्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। हमें एक प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ जाना है। जब पीएसएम पढ़ोगे तो उसमें बार बार एक डेफिनेशन याद करा देंगे आपको हेल्थ की। स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप क्या क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है। वी कैन नॉट अवॉइड द थिंग, बट क्या कर सकते हैं, मेक लिटिल चेंजेस इन योर लाइफ, दे कैन रियली एड अप टू अ बिग फीलिंग ऑफ रिलीफ, ओके। लर्न टू रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड सिंपल वेज टू रिलैक्स, टेक अ ब्रेक, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट सम फ्रेश एयर, क्लोज योर आइज फॉर अ मिनट टू रिफोकस। जब आपके ऊपर स्ट्रेस कंटिन्यू चल रहा है ये सब कर सकते हैं ना। स्टे पॉजिटिव, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू कोप विद स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए उसको दूसरी तरीके से सोचने की कोशिश करो, रिलैक्स करने की कोशिश करो। खुद को रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, सबके लिए अलग अलग होता है ना। कोई अपनी हॉबीज पे कंसंट्रेट करते हैं, कुछ लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, कुछ लोग मूवीज देखते हैं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। बात करो उसके बारे में, ठीक है। आपको लगता है नहीं लगता है कि कोई इसको सॉर्ट आउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट यथार्थ एक चीज होती है, जब आप अपने कोई भी प्रॉब्लम है जिसे आप सफर कर रहे हो उसको आप शेयर कर लेते तो आधी हो जाती है। कभी करके देखा होगा या करके देखना, ठीक है। लेट अदर्स नो दैट यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, allow yourself to say no to friends and family when you know you cannot meet their demands without becoming overwhelmed। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतना स्ट्रेसर ले लेते हैं, हमारी फ्रेंड ने बोला कि मार्केट जाना है, उसने बोला कि मेरा ये काम करना है, फैमिली ने कुछ प्रेशर दे दिया, ठीक है। बट आपको हर जगह आइडियल बनने की जरूरत नहीं है, आपको नो कहना आना चाहिए। बिकॉज अगर आप पॉजिटिव रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, तभी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले वार्निंग साइंस जानो। वार्निंग साइंस क्या होती है आपकी लाइफ में? नो योरसेल्फ एंड वॉच आउट फॉर वार्निंग साइन दैट यू आर स्ट्रेस्ड। वही स्मॉल चेंजेस करो अपनी लाइफ में। स्मॉल चेंजेस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्या चेंजेस हो सकते हैं? अब आपको पता है नॉर्मली जब हम लोग एमबीबीएस करते थे, किसी सब्जेक्ट में अब आप फेल हो जाते थे तो 6 महीने बाद एग्जाम्स लगते थे वापस, फिर फेल हो जाते थे तो फिर 6 महीने बाद लगते थे। आपके यहाँ ये वाला क्राइटेरिया आई थिंक नहीं है, पता है बात आपको? क्या है? सीधा 1 साल। समझ गए? चलो चेंजेस अब क्या क्या कर सकते हो? आप घर से दूर आ गए हो, फैमिली नहीं है आपकी आपके साथ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा अपने रूटीन को फिक्स करो, है ना। 15 मिनट आप एक्सरसाइज के या फिर फिजिकल एक्टिविटी के निकाल सकते हो। कुछ टाइम आपको अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना है, जैसे टीवी देखना है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है, उसके लिए आप टाइम निकाल सकते हो। आपका 2-3 घंटा, आप जैसे पढ़ाई करके आते हो, कॉलेज अटेंड करके आते हो, अपना 2-3 घंटा आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी सबसे इसमें एनाटॉमी सबसे प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक है, वॉलेटाइल होती है, याद नहीं रहती है। तो रोज आके आपको जो भी पढ़ाया गया आप उस चीज को पढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा अपनी डाइट का ध्यान रखो। सुबह जैसे कि कई लोग ड्राई फ्रूट्स लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है, सुबह आप ड्राई फ्रूट्स में भिगो दो, सुबह उसको ले लो डाइट में, ठीक है। दोपहर में कोई फ्रूट का टाइम रखो, ठीक है। तो अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखोगे, अपनी सोशल लाइफ का ध्यान रखोगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखोगे, ज्यादा बहुत बड़े चेंजेस नहीं करने, छोटे छोटे चेंजेस करने। तो एटलीस्ट जब आप रात में सोओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार आज का दिन अच्छा गया। तो ऐसे कर करके क्या होगा, आपकी जब हर दिन अच्छा जाएगा तो यू विल फील गुड, यू विल फील पॉजिटिव, ठीक है। और कभी कभी होता है कि व्हेन यू फील नेगेटिव, आपको अच्छा नहीं लगता, यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, आपसे कुछ नहीं होता है, तब उस चीज को भी एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। हमेशा हम लोग परफेक्ट नहीं रह सकते, ओके। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। वही न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, नींद पूरी करनी है। 8 घंटे 7-8 घंटे की नींद आपको पूरी करनी ही करनी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कॉम्प्रो नहीं करना है, आपकी नींद और आपकी डाइट, ठीक है। से नो, सेट बाउंड्री, मेंटेन पर्सपेक्टिव, कीप योर थॉट्स इन चेक एंड लुक ऑन द ब्राइट साइड, ठीक है। हर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम नेगेटिव साइड देखते हैं, पॉजिटिव साइड देखते हैं, हम पर डिपेंड करता है। हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा ही आपको। कम्युनिकेट करो, असर्टिव
असर्टिव कम्युनिकेशन समझते हो क्या होता है? असर्टिव कम्युनिकेशन वैसे तो आगे एक थेरेपी है बिहेवियर थेरेपी में, बट असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि दूसरे के राइट को हार्म ना करते हुए, ना खुद परेशान होते हुए अपने पॉइंट को विद लॉजिक रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे, कोई आपका फ्रेंड आपसे आपकी कार मांगता है या आपकी बाइक मांगता है, ठीक है, तो ऑफकोर्स यू विल फील स्ट्रेस कि इसको मना कैसे करूं, मन भी नहीं है देने का, दोनों चीजें है ना, फिर क्या होगा? क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में? ये तो एक छोटी सी सिचुएशन है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, तो उसमें हमारी असर्टिव टॉक्स काम आती है। असर्टिव टॉक्स का मतलब यही होता है, वेदर आपका कोई सीनियर है या आपका जूनियर है या आपका कलीग है, ठीक है, जो भी आपका पॉइंट है, बदतमीजी ना करते हुए, चिल्लाते हुए नहीं, ठीक है, तमीज से अपना पॉइंट रखो, ठीक है, और सबके पास कुछ ना कुछ करने के या ना करने के लिए लॉजिक्स और पॉइंट होते ही हैं, अगर हम जब तक कुछ गलत ना कर रहे हैं, ठीक है। लाफ लाइटिंग योर अप योर मूड, ठीक है, जो भी नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी आपको पसंद है, ठीक है, मूवीज, अपने आप को कुछ ना कुछ आपका टाइम होना चाहिए, मी टाइम जिसको बोलते हैं ना, मी टाइम इज नॉट अ ग्लैमर, मी टाइम इज अ रियलिटी। टॉक इट आउट, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू हैव गॉट ऑप्शंस, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड मैनी चॉइसेस यू हैव। कभी कभी आपके पास चॉइसेस होती हैं और कभी कभी चॉइसेस नहीं होती हैं, तो कभी कभी लेट गो भी करना पड़ता है चीजों को। एंड सेल्फ कॉम्पैशन, टॉक काइंडली टू योरसेल्फ लाइक यू वुड अ क्लोज फ्रेंड, ठीक है। अब स्ट्रेस कंट्रोल कैसे करते हैं? अवेयरनेस होना चाहिए सबसे पहले, तो आपको स्ट्रेस देता क्या है, बैलेंस बनाओ उसके बीच में, कंट्रोल करो चीजों को। चेंज योर थिंकिंग, रिफ्रेमिंग, रिफ्रेमिंग एक टेक्निक होती है, इज अ टेक्निक टू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स इन ऑर्डर टू फील बेटर अबाउट दैम। देयर आर मैनी वेज टू इंटरप्रेट द सेम सिचुएशन, सो पिक द वन यू लाइक। Reframing does not change the external reality but helps you view things in a different light and less stressful. पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सब में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। लर्न फ्रॉम द स्ट्रेस यू आर अंडर, जो भी प्रॉब्लम हुई उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, उनसे कुछ हमेशा सीखने को मिलता है ना, चाहे फेल हुए चाहे पास हुए। लुक फॉर अपॉर्चुनिटी एंड सीक आउट द पॉजिटिव, मेक अ चेंज, चेंज योर बिहेवियर, असर्टिव रहो, ऑर्गेनाइज्ड रहो, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये वहां पड़ा हुआ है वहां वो पड़ा है, आपको पता है कि सुबह आपको टाइम पे कॉलेज जाना है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज होके सो, अपनी ड्रेस प्रेस करके जो भी पहनी वो रखो, बुक्स रखो, बैग रखो, जो भी आपको लंच या फिर स्नैक्स लेके जाने, ऑर्गेनाइज करके उठो, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, और जब आप उठोगे तो आपको जल्दी जल्दी भी नहीं होगी, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल है, बट आपको हर जगह ऑर्गेनाइज रहना है। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन यही है कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो, उसको शेयर करो किसी से। ह्यूमर की हेल्प लो, एंड डाइवर्जन एंड डिस्ट्रैक्शन, कभी कभी हमें खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत होती है, एक ही चीज के बारे में बार बार सोचोगे तो प्रॉब्लम होगी। स्टैंडिंग अप फॉर योर पर्सनल राइट्स एंड एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, फीलिंग एंड बिलीफ डायरेक्टली, ऑनेस्ट एंड स्पॉन्टेनियस इन द वे दैट डोंट इन्फ्रिंज द राइट ऑफ अदर्स। वही गेट ऑर्गेनाइज। वेंटिलेशन का मतलब यही होता है, शेयर करो प्रॉब्लम्स को, ठीक है, अगर किसी से शेयर करने को नहीं है तो कोई डायरी मेंटेन करके रखो, उसमें लिखो। Humor, good stress reducer, applies at home and work, relieves muscular tension, improve breathing, pumps endorphins into bloodstream and the natural and it's the body's natural painkiller. बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जब हम हंसते हैं तो रिलीज होते हैं, ठीक है, and they help you out. Take time out, get away from things that bother you, reduce stress level, calm down and think logically. Change your lifestyle, of course diet अच्छी लो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी डाइट में आप जो खा रहे हो, फॉर एग्जांपल फास्ट फूड खाते हैं सब, मैं भी खाती हूँ, ठीक है, खाने भी है, ठीक है, बट साथ में आपको बैलेंस करते हुए अच्छी डाइट भी लेनी है, ठीक है, और चेक रखना है आपको कि कितना क्या खाना है। एक्सरसाइज करो, स्लीप अच्छी लो, लेजर टाइम दो, रिलैक्सेशन दो, मजे आएंगे लाइफ में, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्या कर सकते हो, कन्वेंशनल मेडिसिन, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। वहां जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप साइकोटिक हो गए हो, धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझोगे, ठीक है। लाइफ में जब भी स्ट्रेसर आते हैं, आपको जो आपकी हेल्प करने को बैठे हुए हैं उनकी हेल्प लो जाके, ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो अगर हिम्मत है तो, मसाज आई डोंट थिंक कोई लेता होगा, ठीक है। रियली हिप्नोथेरेपी
ऑस्टियोपैथी, मुझे ऑस्टियोपैथी नहीं पता। रिलीजियस थेरेपी, वही भगवान में मानना, स्पिरिचुअलिटी में मानना, ये आपको हेल्प करता है, पॉजिटिव आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करता है ये, ठीक है। एंड रिफ्लेक्सोलॉजी ज़्यादा समझ नहीं पाऊंगी। एक्यूपंक्चर, फ्लोटेशन, आई थिंक अगर कुछ कर सकते हो तो कर लेना, बट कुछ चीज़ तो प्रैक्टिकल है, ठीक है। So comes to the time management. What is time management? सबसे important चीज है ना। Time management refers to managing time effectively so that right time is allocated to the right activity. ठीक है। Quantity of time and quality of time, आपको किस चीज को कितनी देनी है ये पता होना चाहिए, ठीक है। जिसको आपको जो चीज सिर्फ 5 मिनट में होनी है उसको आप कभी कभी 1 घंटा देने लगते हो, ऐसा होता है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। लोग बोलते हैं ना सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, बट कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। तो यही रीजन है कि वो टाइम मैनेजमेंट करता है। मेडिकल स्कूल में कैसे करोगे अपने कॉलेज में? देयर इज नो क्वेश्चन दैट मेडिकल स्कूल इज टफ, स्पेशली व्हेन यू कंसीडर द अमाउंट ऑफ मटेरियल यू नीड टू कवर इन अ फ्यू शॉर्ट ईयर्स। Even you are putting in a hard work and making every effort to keep up with your studies, the stress of trying to juggle multiple activities and deadlines can impact both your physical and mental health. Of course, चीजें multiple होती हैं यहाँ पे। Learning how to manage your time better will help you maintain academic performance as well as life outside of school. So what do we need the time management? क्यों करना है? To save the time, to reduce the stress, to function effectively, to increase our work output and to have more control over your job responsibilities. ठीक है। एक छोटा सा टाइम मैनेज आपको इन सारी चीजों में हेल्प करने वाला है। हाउ टू यूज टाइम इफेक्टिवली? सबसे पहले प्लानिंग करो, ठीक है। सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, गोल अपने एकदम सेट करके रखो पहले। डेडलाइन सेट रखो। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें डिस्ट्रीब्यूट करो, नहीं तो अपने को जितनी भी लेनी है उसको पहले से ही मैनेज करके रखो। prioritizing activities as per their importance, spending the right time on the right activity. ठीक है। चीजें करने को बहुत है। जैसे आप कल के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हो, बट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी कल की क्या है, ठीक है। और किस चीज में आपने 2-3 एक्टिविटी सेट करके रखी, जिसमें ज्यादा टाइम लग सकता है उसको ज्यादा टाइम देके रखो, जिसमें कम लगना है उसको कम देके रखो। और गोल सेट करके रखो कि जैसे फॉर एग्जांपल कल आज मेरे को रात तक ये बुक के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। कल के लिए भी करके रखो। वही चेक द बिग टास्क, लर्न टू प्रायोरिटाइज, क्रिएट अ टू डू लिस्ट, हैव सम मी टाइम, delegate tasks, take time to respond, keep your eyes on the prize, be accountable for your actions, eat that ugly frog first. I think समझ रहे हो इसका मतलब। Minimize distraction. The process of time management starts with cost your time, making activity log, goal setting, planning, वही बार-बार चीजें हैं। Costing your time क्या होता है? अपनी टाइम की वैल्यू समझो, ठीक है। समझो कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। 24 आवर्स होते हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहले ये होता है कि आपके पास कितना टाइम है और आपकी टाइम की कितनी वैल्यू है, ठीक है। और आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, फिर आपको पता लगेगा कि टाइम आप वेस्ट कहाँ पे कर रहे हो। मेकिंग एक्टिविटी लॉग बना के रखो, मेक अ रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ द टाइम स्पेंड ड्यूरिंग द डे ऑन वर्क एंड स्टडी, पिनपॉइंट द क्रिटिकल एरियाज, स्पेंड मोर टाइम ऑन हाई एंड ऑफ टॉपिक, ठीक है। पता करो सबसे पहले कि टाइम जा कहाँ रहा है। जैसे कि आपको जब तक आप असेस नहीं करोगे ना खुद को, ठीक है, चलता रहेगा आंख बंद करके, जिस दिन असेस करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि आप टाइम दे कहाँ रहे हो। आजकल मोस्टली लोग लैपटॉप पे या फिर फोन पे टाइम देते हैं, ठीक है। आज फोन में एप्लीकेशन भी आता है, आप देखते हो कि आपने कल कितना टाइम स्पेंड किया किस चीज पे, ठीक है। तो समझो कि वो टाइम जा कहाँ रहा है, ठीक है। और फिर उसको पकड़ो, कैच करो और पता करो कि आपको वो टाइम देना कहाँ पे, तभी मैनेजमेंट कर पाओगे, ठीक है। और देखो किसी किसी के साथ होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ नाइट पर्सन, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। किसी का कंसंट्रेशन मॉर्निंग में अच्छा बनता है। कुछ लोग सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ने लगते हैं, उनका कंसंट्रेशन उस टाइम होता है, ठीक है। कई लोग रात में अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो कॉपी कैट नहीं करना है कि वो मॉर्निंग में पढ़ता है। एक वो बना हुआ है ना ट्रेडिशन, मॉर्निंग में पढ़ो। आपका जब कंसंट्रेशन अच्छा है, आपको लगता है कि ये टाइम मेरे लिए ठीक है ये एक्टिविटी करने के लिए, तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है चीजों को। गोल सेटिंग करके रखो, ठीक है। ब्रेक योर मेन गोल इनटू स्मॉलर गोल। बहुत बड़ा गोल अगर आप ये लेके चलोगे कि मुझे तो ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है,
5 दिन में 10 दिन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। उनको छोटे छोटे गोल्स पर डिवाइड करो, ठीक है। मेक अ डेली टू डू लिस्ट। बेड पे जाने से पहले, बेड पे जाने के बाद नहीं, ठीक है। बेड पे जाने से पहले कल के लिए अपनी लिस्ट बना के रखो कि आपको क्या क्या करना है ना। एंड रिवाइज एंड अपडेट योर लिस्ट ऑन डेली बेसिस। फिर जब आप उस पे एक्ट करना शुरू करोगे तब आपको लगेगा कि कहाँ आपसे चीज मिस हो रही है, ठीक है। तभी आप उसको टाइम टू टाइम करेक्ट करते जाओगे। वही प्लानिंग करके रखो, कुछ नई बात नहीं है इसके अंदर। प्रायोरिटी बना के रखो अपनी, ठीक है। कि आज फॉर एग्जांपल आज का दिन स्टार्ट हो रहा है तो आपकी प्रायोरिटी क्या है। डे टू डे प्रायोरिटी अपनी चेंज हो सकती है। शेड्यूल बना के रखो, ठीक है। रियलिस्टिक टाइम का, ठीक है। मोटिवेशन में एक चीज ये भी है कि आपके जो गोल्स होते हैं ना, वो ना तो बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए ना बहुत ज्यादा लो होने चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा लो होगा, ठीक है, वो सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है आज के लिए, वो आपको कभी भी एक्टिवेट नहीं करेगा, आपको मोटिवेट नहीं करेगा। या फिर आप इतना बड़ा गोल बना लोगे जो पॉसिबल ही नहीं है। गोल हमेशा आपके रियलिस्टिक होने चाहिए, चाहे वो एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। रियलिस्टिक गोल्स बना के चलो। ओवर कमिटमेंट नहीं करना है आपको, चाहे खुद से हो चाहे दूसरे से हो, ठीक है। बी योर ओन जज एंड योर ओन मोटिवेटर। मेक टाइम मैनेजमेंट योर टूल फॉर सक्सेस। यूज योर टाइम वाइजली। द की इज नॉट स्पेंडिंग टाइम बट इन इन्वेस्टिंग इट। हम मनी को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, स्पेंड नहीं करते हैं। चलो स्पेंड करना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट बाकी जो ज्यादा पार्ट होता है कि वो चीज हम दे तो रहे हैं बट हमें उससे ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम आधे घंटे का टाइम दे के उसको जस्ट स्पेंड कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है। वो जो हम जो भी चीज एक्टिविटी में हम उसे दे रहे हैं वो हमें पॉजिटिव, हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देनी चाहिए। तो टाइम को इन्वेस्ट करना सीखो। टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट वी यूज वर्स्ट। सबसे ज्यादा हमें टाइम ही चाहिए ना, और सबसे ज्यादा हम खराब उसी को करते हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। बी रियलिस्टिक नॉट ओवर एम्बिशियस, ठीक है। पॉजिटिव होने का मतलब ओवर एम्बिशियस नहीं होना होता है, ठीक है। वापस बोल रही हूँ, चीजें रियलिस्टिक होने चाहिए। अप्रिशिएट योर एफर्ट्स इन प्रोग्रेस। कभी कभी आप अपने आप को भी अप्रिशिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एम था कि एक महीने में मुझे ये स्पोर्ट्स भी खेलना है, मुझे गिटार भी सीखना है, मुझे ये चीजें भी करना है। आपने रियलिस्टिक गोल बनाया अपने लिए, ठीक है, और आपने वो कंप्लीट करा, तो अपने आप को ट्रीट भी दे सकते हो। जो चीज आपको काफी टाइम से खरीदने का मन था उसको खरीद लो। जो आपको बहुत टाइम से खाने का मन था, अपने आप को ट्रीट दे दो, पार्टी दे दो, ठीक है। अपने आप को अप्रिशिएट भी करना सीखो। रिमेंबर द ग्राफ्स ऑफ प्रोग्रेस इज नॉट लीनियर। चीजें हमेशा लीनियर नहीं चलती हैं। कभी कभी टाइम बहुत अच्छा भी आता है और टाइम कभी बुरा भी आता है, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। आजकल बोलते हैं ना, इट्स ओके टू बी नॉट ओके। कभी कभी चलता है, रोज रोज नहीं, कभी कभी, ठीक है। लर्न टू लव योरसेल्फ। खुद से प्यार करना सीखो। थैंक यू।